Welcome to my Merchant Navy question and answer channel. Here I guide you for Merchant Navy with the right information because currently there is many false and fake information, and I've seen coaching academies asking you to fill up their Google forms in the name of guidance. So I want to break that. And why should you even listen to me? This is our current 2026 IMCT result. We have under 1K, under 2K, under 3K, under 4K, under 5K rank holders. Talking about sponsorship, we have August 2026 current sponsored students from Fleet Management, MERS, Anglo-Eastern, Tolani, and other top shipping company. How do I guide you? I guide you by selecting questions from YouTube community, Reddit, and Quora related to Merchant Navy, IMCT, and sponsorship. Let's start today with Reddit. So this is 22 hours ago. Okay, it is already updated. So IMU CET or CUET. Question is, hey guys, I am a class 12 student, ECM from a middle class family. I scored 91% in 10th, but only 74% in 11th because I got distracted by girls. I had a big train since 10th to join the Merchant Navy through IAUCT and become an officer. High salary, financial freedom, foreign trips, improve family condition. My parents already agreed for it, but now I'm super confused and tense. I really crave normal college life, best, making good friends, dating hot girls, enjoying my youth, love life, and social science. I'm worried that if I go for Merchant Navy, I'll miss all that and might regret it later, but I chose DUCUT for the college experience. Money will come slow, and I might regret not securing high paying job early. My elder brother is from IIT KGP, so the bar is high. Also, I have permanent knocks. So army was out. What should I do? Should I go for Merchant Navy for money, security, or choose DU for memories and balance plus grinds? Because there, has anyone been in similar situation, especially people who chose Merchant Navy versus normal college life? Do you regret your choice now? Any advice would help a lot. Okay. So there is, you have your class 12. Okay. You have selected PCM. Uh, mm, for 90% of students, they don't think about Merchant Navy when they were selecting their class 12 PCM. There are 10% students who already thought to join Merchant Navy, and because of that, they are choosing PCM. But 90% of students don't know about Merchant Navy or did not think about Merchant Navy before selecting this. Okay, so in India, we are already going after engineering. Okay, in that 90% also 70% students are like, yeah, I will be doing engineering. And then from that 20% students get to know about Merchant Navy and they start their research. And like this guy, they found that Merchant Navy gives them financial independence, early age, high salary. But this guy has also done some more research and he knows that Merchant Navy is not a normal life where he can enjoy, other things which normal job can give it. So, like just like any other career, Merchant Navy has also two sides. Okay, one is your good side and one is your worst side. Okay, so Merchant Navy good side is already discussed: financial independence at early age, high salary. You will be having job in hand before even your college starts. You will be making your parents proud. Yes, obviously correct. Because in India, unemployment is a huge thing, and you are getting job early in your hand because of sponsorship, and because of that, you will be making your parents proud. Yes, but Merchant Navy has also worse sides like family separation, mental health issues, the things you see online where guys are enjoying on pop, enjoying their family life, that you might be missing those. Currently you're just a teenage, and when you grow up you will be having your family, the moments you will be missing. So this is your good side and this is a bad side of Merchant Navy. I want to tell a story of a guy. Okay, so
he met me around, I think, 2018 when I was in my second year of BSc. Okay, he was from my side only, and my side is from Siliguri, West Bengal, and he was looking for career at Merchant Navy. He was also curious, and because in Siliguri it is not like super knowledgeable about Merchant Navy, I also got to know about this via someone else looking from newspapers, and I found out one seafarer from Siliguri and talked with him, and he guided me and I joined. So just like that, he wanted my guidance. I was in second year of BSc, but I don't know what happened. He did not join Merchant Navy that time. I think his parent did not allow. So he joined some other BSc or BBA something he did. Okay, and that 2 or 3 years. And after I think 2021 or 2022, I was sailing. Sailing in. I was sailing as a period. So that time he again messaged me on WhatsApp. Okay, messaged me on WhatsApp and saying that यार जॉब नहीं लग रही है. मैं मर्चेंट जॉइन करना चाहता था, पापा ने मना किया, मैंने नहीं किया, एंड दैट वाज़ द वर्स्ट डिसीजन आई टुक. आई थिंक अगर मैं उस टाइम कर लेता तो अभी मैं अच्छा खासा कमा रहा होता, अपने पैरों में खड़ा होता, अपना डिसीजन खुद ले रहा होता, ठीक है? तो ही वाज़ कंप्लीटली रिग्रेटिंग दिस चॉइस. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग रिग्रेट करेंगे. देखो, अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि योर करियर इज़ खत्म, ठीक है? आप मान लो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, बट आपने ज्वाइन नहीं किया अभी, ठीक है? एंड आपको 3 साल 4 साल के बाद यू आर रियलाइजिंग कि यार काश मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया होता. तो लेट्स सी कि यार आपका एज व्हेन यू आर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप कुछ और ज्वाइन कर रहे हो, तो मैक्सिमम लोगों का एज क्या होगा, 19 होगा, ठीक है? अब 3 से 4 साल अगर हम जोड़ भी ले तो यू विल बी अराउंड 22-23 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्रैकिंग स्पॉन्सरशिप एट दिस एज. यस. एंड उससे पहले अगर आपको रियलाइजेशन हो जाता है लाइक 20-21 के एज में, तब आप अपना बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू आर थिंकिंग यार चलो अभी मेरे को कर लेना चाहिए स्विच, एंड यू टॉक विद द पेरेंट्स. ओके यार, आपको मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे एंड यू वांट टू स्विच. आपने बात करी अपने पेरेंट्स से एंड दे हैव अग्रीड. आप यहाँ पे भी जंप कर सकते हो ना मर्चेंट नेवी के लिए. इट्स नॉट लाइक कि आपको अभी ही सारा डिसीजन लेना है कि यार अभी नहीं लिया. ऐसा नहीं है कि यार अभी 90 एज में ही आपने डिसीजन लिया कि यार मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना था, बट मैंने नहीं किया और क्या मैं रिग्रेट करूंगा बाद में. यू माइट रिग्रेट, एंड उस रिग्रेट के हिसाब से शायद आप फिर मर्चेंट नेवी चूज करोगे. इसका मतलब ये नहीं है कि 19 की एज में ही यू विल गेट टू नो कि यार मर्चेंट नेवी इज गुड फॉर मी और नॉट, ठीक है? अगर आप क्लास 12 के बाद ड्रॉप लेते हो, कोई बात नहीं, ड्रॉप ले रहे हो सोचने के लिए यार मर्चेंट नेवी मेरे लिए है या नहीं है, यू आर एक्चुअली सेविंग योर लाइफ. यस, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, आप करियर बनाने के लिए 1 साल का ड्रॉप ले रहे हो, तो थिंक अबाउट इट. या कि अगर आप कुछ और ज्वाइन कर ले रहे हो इन द मीन टाइम, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो भी कोई बुराई नहीं है. अगर आपको बाद में जाके लग रहा है कि यार चलो मेरे को यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं मर्चेंट नेवी ही ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप मर्चेंट नेवी में ट्राई कर सकते हो. मर्चेंट नेवी में भी आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप कहीं और जंप मार सकते हो. यू हैव द एज इन विथ योर हैंड, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको अभी ही चूज करना है. अगर आप बाद में जाके रिग्रेट भी करते हो तो देयर इज टाइम टू रेक्टिफाई इट. होप यू आर गेटिंग अंडरस्टूड. सो मेरा कहने का मतलब यही है, क्लास 12 पीसीएम हम इसलिए चूज करते हैं इंजीनियरिंग के लिए मेनली. हमारे दिमाग में मर्चेंट नेवी ही ख्याल नहीं आता है कि हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, इसलिए हम क्लास 12 में पीसीएम लेंगे. इट इज़ ओनली 10% जो ऐसा सोचते हैं. मर्चेंट नेवी का भी 2 साइड्स हैं, गुड एंड वर्स्ट साइड. गुड साइड इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट अर्ली एज. यू विल गेट हाई सैलरी, यू विल गेट जॉब इन हैंड, यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड. वर्स्ट साइड इज फैमिली सेपरेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, मिसिंग मैनी मूवमेंट्स, ठीक है? एंड अगर आप 19 की एज में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का फैसला नहीं लेते हो, यू वांटेड टू ज्वाइन बट पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ, कोई बात नहीं यार. अगर आप मान लो कोई और ज्वाइन कर लेते हो, जैसे कि इस बच्चे ने डीयू ज्वाइन कर लिया, तो मान लो 3 से 4 साल आप वहाँ पे बिता रहे हो, उसके बाद सोच रहे हो कि यू आर रिग्रेटिंग कि यार काश मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया होता, तब भी आप कर सकते हो. आई हैव सीन स्टूडेंट्स ऑफ 20 to 23 ईयर्स ट्रैकिंग स्पॉन्सरशिप, ठीक है? तो आप तब भी कर सकते हो. एंड मान लो अगर आप बीच में ही आप कुछ और ज्वाइन कर ले, या इवन इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप आफ्टर 12 टू थिंक अबाउट दिस करियर, इट इज ओके.
ठीक है, इट इज ओके, यू हैव टाइम विथ योर सेल्फ, यू आर जस्ट 19-20 एज, कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, यू कैन स्टिल ज्वाइन। ठीक है, होप आई एम क्लियर ऑन दिस। Okay. Now talking about insane growth of INUCD. Okay, that's interesting. INUCD की सर्च किया है past 5 years. Okay, see this peak comes around your May month only. And yeah, अगर आप यहाँ देखो 2025 का देखो, लाइक ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल है 2026 में। सो कि मैं अब बताते आ रहा हूँ कि यार हैज बिन का बड़ी, या बट इस बार आई थिंक हम ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज ईरान यूएस का वार जब चल रहा था तो मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत सारे न्यूज़ भी आ रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो मर्चेंट नेवी को बहुत ज़्यादा इस बार हाईलाइट मिला है, की वजह से भी हो सकता है भाई, क्योंकि बैड मार्केटिंग इज ऑल्सो अ मार्केटिंग, ठीक है, चाहे गलत रीजंस के लिए कि या वो बहुत सेट दिखाने के लिए ही मर्चेंट नेवी का नाम आया था, या कुछ भी आया था रिगार्डिंग कि ईरान यूएस वार, दैट वाज आल्सो अ मार्केटिंग, उसकी वजह से ही बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोग मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला। ठीक है, एंड ऑब्वियसली द राइज ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, वो भी है। ठीक है, तो दिस गूगल ट्रेंड्स क्राफ्ट जस्ट शो द स्केल ऑफ यूनिवर्सिटीज growth while other exams have stagnant popularity. Merchant Navy is becoming increasingly popular option among students. This year alone, the competition and popularity doubled. The competition will be insane in the coming years. ठीक है, ये बता रहे हैं। Let's check Google. I think Google डाटा हो रहा है ना कुछ। ओह सॉरी, गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड जैसे उसने वहाँ पे बोला है कि यार चलो नीट का देखते हैं। ठीक है, नीट का देखते हैं कि भाई क्या चल रहा। तो उसने जैसे पास्ट 5 years बोला है, तो लेट्स सी कि या सो ही वाज 50% मोर वर्सेस प्रीसीडिंग ईयर्स, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यार 2025 में उतना ही है, उतने ही है लोग हैं, लाइक 91 जो भी मान लो। ठीक है, एंड यहाँ पे भी सेम है 20, मतलब ज़्यादा कोई फर्क नहीं है नीट में। यस, बट हमें ये भी मानना होगा कि नीट एंड जेई ये सब मैच्योर्ड एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन चुके हैं। ठीक है, बट योर आईएनसीटी इज जस्ट गेटिंग एक्सप्लोर्ड बाय स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं यार जेई का क्या हाल है। ठीक है, past 5 years, ओके, अगेन द ग्राफ शोज है भी, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है 2025 2026 ऑलमोस्ट है। अब नाउ लेट्स चेक आईएनसीटी, आईएमसीडी वो बहुत ही नीचे, यू कैन सी, आई मीन बहुत नीचे है। ठीक है, लेट्स जस्ट सी अबाउट एवरेज इंटरेस्ट, मतलब तुम देख सकते हो नीट यहाँ पे है, नीट सॉरी यहाँ पे नीट जेई से भी ऊपर है। ओके, नीट यहाँ पे है, जेई यहाँ पे है, एंड योर आई यूनिवर्सिटी इज हियर। ठीक है, एंड नाउ लेट्स डिलीट दिस एंड जस्ट लुक फॉर IUCD। या 450% versus preceding 5 years. True man. So this shows everything. ठीक है, एंड लोकल मैंने बहुत सारे यहाँ देखे कि यार देवर सेइंग कि यार एक ही कंपटीशन है, कोई कंपटीशन बढ़ नहीं रहा है, कोई कोई बोल रहे थे कूल बनने के लिए कि सी एवरीवन वांट्स टू बी कूल ऑन सोशल मीडिया, जो भी चल रहा है उसके अगेंस्ट में बोलो तो दे विल लुक कूल। ठीक है, बट यहाँ पे डाटा हमें बता ही रहा है कि भाई हाँ इंक्रीज हो रहा है कंपटीशन। डराने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इट इज जस्ट टू बी गेट इन्फॉर्म कि हाँ भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग इट सीरियस। ऑलमोस्ट डबल है 2025 देखो एंड 2026 देखो, ऑलमोस्ट डबल, इट इज ऑलमोस्ट क्या भाई एकदम डबल ही है ये दो। ठीक है, एंड आई थिंक 2027 में भी यही हाल होने वाला है जिस तरह से चल रहा है।
So yes, this guy is correct. I'll not be pursuing merchant navy. I'm going for BTech CSE and see you. All the best to you. Okay, let's see. But since 2 days, I don't know why my heart doesn't feel like I belong in this field. I have a good athletic body, everything eyesight and all are good. But I don't know why, but just because of the money this field offers, my art is not making up itself to make such a sacrifice where I'll be months away from my family and if anything happens, I would not even be able to do anything. Just say मैंने कहा, it has X perks, it has X on strengths too. ठीक है? I also talked to a guy who has served for chief engineer and has been in this field for 12 15 years and is now a police superintendent. He told me that if you're willing to sacrifice everything like family, friends, social life, and important operations just for the sake of worldly financial freedom and huge amounts of money, then only join this field as it is not an easy job at all. Like how it is shown in videos on YouTube, it is not like that at all. That is just 1 to 2% of the seafarers who are just happy with the paycheck they get. I told him that I get in this field. I just wanted to do this till I am 30 or 31, not more than that. And he told me I would not even be able to become a chief engineer in that much less time because if I join the police, I'll be getting graduated at 23 years of age. The other options I have right now, repeating and all. Okay. Okay. See, that is why you need to, take your decision correctly. See, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू आर एट दैट एज कि भाई आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? आपको मर्चेंट नेवी पसंद है, आप मर्चेंट नेवी जॉइन करो। जॉइन करने के बाद लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, यू कैन टॉक विद द पेरेंट्स एंड सी कि यार ठीक है, मैं कहीं और जॉन मार सकता हूँ, नहीं मार सकता हूँ, ठीक है? बट इफ़ यू आर अ पर्सन, ठीक है? इफ़ इफ़ यू आर अ पर्सन जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इफ़ यू आर अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी लोअर middle class family, this mercenary career then put your family from that to upper middle class family, ठीक है? इतना ये कर सकता है मर्चेंट नेवी का, आपको हेल्प कर सकता है आपके फैमिली को ऊपर लाने में, ठीक है? बट अगर आप ऑलरेडी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हो, आपको सैक्रिफाइसेस क्यों ही करना है, ठीक है? आप कुछ और कर सकते हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ को, तो आप यू ईज़िली स्विच मार सकते हो, तो जस्ट ट्राई इट आउट, ठीक है? ट्राई नहीं करना है तो कुछ और करो। वो और करने के बाद आप रिग्रेट कर रहे हो कि काश मैंने ये कर लिया होता तो आप यहाँ कर लो। यू आर ऑलरेडी इन अपर मिडल क्लास फैमिली, यू कैन गो हियर एंड देयर, तो आप ट्राई करो। जब जितना ट्राई करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, इट विल बी गुड फॉर यू। बट अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू आर फ्रॉम लोअर मिडल क्लास फैमिली, आप चाहते हो कि यार एक ऐसी जगह मुझे मिल जाए जहाँ से मैं अपने फैमिली को हेल्प कर सकूँ, जल्दी मेरे पास जॉब लगे, मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में ना फँसूँ, तो भाई मर्सी नेवी इज़ अ गुड करियर फॉर यू, ठीक है? हर करियर में हर जगह आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे इस लड़के ने कहा कि यार शायद मैं फैमिली का टाइम बिता ना पाऊँ, ये ना कर पाऊँ। कॉर्पोरेट में भी तो बहुत सारे ऐसे जगह में आपको पोस्टिंग मिल जाती है जहाँ पे आप ये सब चीज़ मिस करते हो, है ना? कहीं पे भी इट इज़ नॉट गारंटीड कि भाई आप ये सब मिस नहीं करोगे, ठीक है? तो हर जगह अपना कॉन्स है, अपना प्रोज़ है। बट आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी, आपको अपनी सिचुएशन देखना पड़ेगा, देन यू नीड टू चूज़ योर करियर, ओके? Yeah, 84 students have their rank cards cancelled due to malpractice during IMCT एग्जाम्स। आपको पता ही होगा कि इस बार क्या हुआ है। यू आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। अगर नहीं हो तो इस बार चीटिंग का मामला बहुत आया है एंड आईयूई ने पहली बार आई थिंक मैंने देखा है कि इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि 84 स्टूडेंट्स को उन्होंने एकदम आई थिंक 2 साल के लिए उन्होंने बैन कर दिया कि आप आईएमडी एग्जाम नहीं दे सकते। ओके, टेकिंग taking a drop because I got allowed PSC Chennai post found at 73x, and if I do upgradation I will get allotted my post at BSc Navi Mumbai.
But since I have done my counseling process and I don't want the post somehow, I would have to take a drop. A crazy drop in cutoff for BSc Nautical Science in Navi Mumbai. Kochi became so good that it close to under 250 for general and Kolkata being 560 since many JE aspirants appear. All the best to you all opting this field. या ये ट्रेंड तो यार है कि जो जेई प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो कि इधर जॉब इधर मार लेते हैं छलांग मर्चेंट नेवी में आईएनएफ लेते हैं एंड आप यहाँ पे देख ही सकते हो एक्सपीरियंस कि भाई क्रेजी ड्रॉप हुआ है कट ऑफ में ठीक है विच इज़ बैड ठीक है विच इज़ बैड क्रेजी ड्रॉप इन कट ऑफ फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस इन नवी मुंबई को एंड कोची became so good that it got close to under 250 पर जनरल मतलब अगर आपको नवी मुंबई कोची जैसे आईएमयू कॉलेज में जाना है तो यू नीड टू गेट अंडर 250 रैंक कोलकाता बीटेक के लिए अगर आपको जाना है तो यू नीड 560 रैंक उससे नीचे चाहिए आपको जो मैं आपको बार बार बता रहा था और बच्चे बोल रहे थे सर क्या बोल रहा आराम से अंडर 5K में भी आ जाता है देख लो कुछ अंडर 250 अंडर 560 तक में आपके रैंक आएंगे तभी आप बीएससी बीटेक ये सब में जा सकते हो आईएमयू कॉलेजेस में ठीक है एंड यू ऑल नो कि भाई पर्स क्या है बी आईएमयू कॉलेजेस में जाने के और बीएससी एंड बीटेक्स especially for BTech Kolkata, the work is very high. You get solid placement opportunity. The fees will be super low. ठीक है? Okay. Okay, guys. That's it for today. Uh, See you tomorrow. And अगर आपके कोई और questions हैं तो let me know in the comments. Bye.